Hello guys, welcome back to my channel. Hope you have seen the previous lecture on alkyl halides and aryl halides. So in the previous lecture we have discussed about the preparation and also the physical properties of alkyl halides. In this lecture we are going to discuss mainly about the chemical properties of alkyl halides. So when we are talking about chemical properties, what comes in our mind is there are different types of reactions carried out by alkyl halides. First one is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Then we have elimination reaction and also reaction with the metal. Reaction with metals. So first we are going to discuss what is the nucleophilic substitution reaction. What do you understand by a nucleophile? Or what is nucleophilic substitution? So in this reaction, basically what we will see that a nucleophile is being attached to an alkyl halide. Okay, so we have a nucleophile, we have alkyl halide, okay, and in this we will be seeing that there will be a living group. यहाँ पे क्या है, एक living group होगा और दूसरा nucleophile. तो यहाँ पे X जो है, it can be chloro, bromo और iodो, जो हमारा living group होगा. ठीक है, ये हमारे पास living group है. So in this case what will happen, the living group will leave and the nucleophile will attach. ठीक है, तो यहाँ पे R के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत तरीके का होता है. पहला होता है SN1, देन वी हैव SN2, देन SNI, देन SNAR एंड ऑल्सो डिफरेंट SN रिएक्शंस आर देयर. ठीक है, तो पहला SN रिएक्शन किसको बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, then substitution nucleophilic, what is this, intramolecular, and then substitution nucleophilic aromatic. Okay, so these are four, but in this lecture we were only going to focus on SN1 and SN2 reaction of alkyl halides. Okay, so let's just see what are the reactions of alkyl halides. So first we are going to see the nucleophilic substitution reaction in SN1. Now SN1, what is SN1? SN1 is substitution nucleophilic reaction, unimolecular reaction. इसको हम बोलते हैं substitution nucleophilic unimolecular reaction. अब इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन बस यही है दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन मॉलिक्यूल. क्योंकि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन मॉलिक्यूल. ऑलराइट, which we will understand by an example. For example, hydrolysis of alkyl halides. Hydrolysis of alkyl halide. Alright, so what we will do? We have alcohol and we have alkyl halide. Okay, hydrolysis of alkyl halide. Sorry about alcohol. Hydrolysis of alkyl halide. Okay, तो यहाँ पे water जो है वो क्या काम करेगा? Water यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. ठीक है, एंड X विल बी आर लिविंग ग्रुप. सो बेसिकली ये जो SN1 रिएक्शन होती है दैट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन. हम नाम पे ना जाए अगर, तो इसको हमेशा ध्यान रखोगे कि SN1 रिएक्शन नाम इट मे बी SN1 बट इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन. इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के लिए, जहाँ पे वाटर मेरा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और साथ ही ये एक सॉल्वेंट का भी काम करने वाला है. ठीक है,
So water is a polar protic solvent here as well as a nucleophile. तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? We will get an alcohol and also we will get HX या फिर आप सिर्फ X माइनस भी लिख सकते हैं. ओके, सो लेट व्हाट काइंड ऑफ कार्बन, ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप के कार्बन में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है? सो SN1 रिएक्शन इज बेस्ट गिवन बाय अ 3 डिग्री कार्बन. सपोज वी टेक CH3, CX और लेट अस टेक Cl, CH3 and CH3 where Cl is the leaving group. Alright, Cl is the living group and water is our nucleophile. So what will happen ultimately? This is going to leave and we will be getting, क्या मिलेगा हमको? एक अल्कोहल मिलेगा और साथ ही Cl माइनस मिलेगा. लेकिन ये रिएक्शन तो हमने देख ली, बट ये रिएक्शन होता कैसे है? ये रिएक्शन फॉलो करता है 2 स्टेप mechanism. Okay, so it has a 2-step mechanism that is given as like this. So first one is the formation of carbocation. Formation of carbocation. If you want to take a snap, you can take it. So in this case, we have first is formation of a carbocation. In step 1, formation of carbocation. Okay, so first what will happen? The leaving group is going to leave and there will be a formation of carbocation. यहाँ से क्या करेगा? Cl जो है वो लीव कर जाएगा और हमको क्या मिलेगा? एक कार्बोकटायन मिलेगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकटायन है. ठीक है, साथ में ये जो Cl है वो क्या हो गया? बाहर हो गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा और किस तरफ से अटैक कर सकता है? तो यहाँ पे इस केस में न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम 2 साइड्स. वेयर, हाउ, वी विल सी इन अ व्हाइल. ठीक है, दिस इज द कार्बोकटायन. नाउ our nucleophile, that is H2O. So this has lone pair of electron. तो यहाँ पे water का जो lone pair है that is going to attack the carbocation forming this. Okay, now again what will happen? यहाँ पे एक और ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये जो लोन H+ है वो लीव कर जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा एंड वी विल बी गेटिंग CH3, 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 COH, that is alcohol, 3 degree alcohol. Okay, so this is basically SN1 reaction is basically a 2-step mechanism where the first step जो कि formation of carbocation है, this is the slowest step. ये जो स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप होता है और यही जो स्टेप है that is also the rate determining step. Okay, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और जितना ज्यादा हमारा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ही अच्छा इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ओके, सो ये यूनिमोलिकुलर क्यों है? क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है. ओके, एंड देन द रेट ऑफ द रिएक्शन हियर इन दिस केस, इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the alkyl halide raised to the power 1. Therefore, order of reaction, that is why it is also considered as the first order reaction. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे. देन it takes place at low temperature as it is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. Alright. Then
व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। आप चाहे तो इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं एंड आई गिव 1 minute, यू कैन टेक द पिक्चर्स। ओके, सो इन दिस केस हम फिर से देखते हैं ये SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है जहां पे लिविंग ग्रुप लीव्स। इट इज द स्लोएस्ट रिएक्शन, ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पे निकल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर इज द न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यू नो कि पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, पोलैरिटी तब डेवलप होती है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। Okay, now I'm rubbing it off so we can discuss the stereochemistry. What is the stereochemistry of this reaction? ना यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, दिस इज कार्बोकैटायन, ऑलराइट। नाउ इन दिस केस यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन है और Cl- भी फ्री है, तो अगर मान लो Cl- यहाँ पे है समवेयर अराउंड, देन विल इट अलाउ द अदर न्यूक्लियोफाइल टू कम एंड ज्वाइन? नहीं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो ज्यादातर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो नीचे की तरफ आके ही अटैच होगा। ओके, तो इस केस में पॉसिबिलिटी जो होती है वो दोनों होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है हमारे न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने की। पहली तो ये और दूसरी ये। ओके, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है जहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है विच इज वी गेट R कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा जहाँ पे इन्वर्जन होता है। तो क्योंकि इन्वर्जन, लेकिन एंड वी ऑल्सो गेट अ रेसमिक मिक्सचर, ओके, बट इन नॉट ऑल द टाइम। बट यहाँ पे क्या है एक्चुअली इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी जो लिविंग ग्रुप है वो मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप मौजूद है इसीलिए जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादातर वो वहां पे अटैच होना चाहेगा जहाँ पे जगह खाली है। यहाँ पे जगह खाली है तो इधर आके अटैच हो जाएगा। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, बट ये तभी होगा जब कार्बन कायरल होगा। अब कार्बन कायरल क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, चिरैलिटी क्या होती है, ये सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। बट हियर बस इतना ध्यान दीजिए कि कायरल कार्बन या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है अगर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। सपोज यहाँ पे हमने H दे दिया, ये OH दे दिया, ये हमने CH3 दे दिया, यहाँ हमने COH दे दिया। ठीक है, सो व्हेन अ कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, देन इट इज नोन एज अ कायरल कार्बन। तो हम इसको कायरल कार्बन बोलते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेंशन होगी या कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन होगी या उस केस में होगी जहां पे हमारा कार्बन जो है वो कायरल होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सम फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस SN1 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स इस SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। द स्टेबल द कार्बोकैटायन, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। सो इट इज बेस्ट इन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। Okay, so it also depends on the nature of the alkyl halide. Okay, दूसरा ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के नेचर पे कैसे, जितना इजीली हमारा लिविंग ग्रुप छोड़कर जाता है उतना ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा।
ओके, इन दिस केस अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो I माइनस विल बी ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl and Cl is greater than F minus. Alright. Then also it depends on the nature of the solvent. क्यों nature of the solvent पे? Because here the solvent is doing the work of breaking the bond. यहाँ पे क्या कर रहा है काम water? यहाँ पे water जो है वो bond breaking का काम कर रहा है CCl के बीच में. ओके, क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. इट इज अराउंड 80 एंड बिकॉज इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट कैन ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CCl. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन. हमने क्या पढ़ा? SN1 रिएक्शन कैसा होता है? SN1 रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही इन्वर्ट होता है. ओके, देन इट इज अ 2-स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन जहां पे पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में अटैक होती है न्यूक्लियोफाइल की. ओके, तो यहाँ पे वाटर का क्या काम है? वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है. इट इज अ पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट. ओके, देन वी डिस्कस दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी SN1 रिएक्शन. तो SN1 रिएक्शन किन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है? पहला तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है. जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा उतनी अच्छी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन. Hope this much is clear to you all. Okay, so next we will do SN2 mechanism. Next is SN2 mechanism. SN2 मैकेनिज्म. अब बस इतनी सी बात ध्यान में रखना कि SN1 और SN2 में क्या होता है. SN1 2-स्टेप रिएक्शन है तो SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है और ये किसमें अच्छे से होती है? ठीक है, तो इस केस में क्या है, वो उसमें किसमें हो रही थी? 3 डिग्री कार्बन में हो रही थी अच्छे से. ये किसमें अच्छी होगी? जहां पे इसमें लीस्ट कार्बोकैटायन, तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यानी कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ओके, इस केस में SN2 रिएक्शन में देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन. यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक CH3X, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अगेन विल टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस यहां से KOH के प्रेजेंस में एंड वी आर टेकिंग अ सॉल्वेंट दैट इज एसीटोन, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3OH प्लस यू कैन राइट KX or only X minus, that depends on you. Okay, so here what is the mechanism of this reaction? It is a single step reaction जहां पे formation of कार्बोकैटायन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो काफी यहाँ इससे पहले हमने SN1 में क्या देखा था? वी वर हैविंग अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं जहां पे इट इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, सो पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे हम बोल रहे हैं यानी कि इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो उसकी जरूरत तो है ही. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं CH3 डैश एंड डैश. ओके, लेट इट बी Cl और यू कैन टेक X माइनस. बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हियर द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म. ट्रांजिशन स्टेट क्यों फॉर्म कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो X माइनस डेल्टा नेगेटिव है. ठीक है, तो ये यहाँ से लीव अभी करा नहीं है इसने, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि आगे तो ये है और ये ऑलरेडी ये नेगेटिव है, ये ज्यादा इससे
ओके तो यहाँ पे OH को अटैक करने के लिए क्या जगह है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस वो बैक साइड से अटैक करेगा. इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. सो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस केस में कार्बोकैटायन बनने का टाइम नहीं होता है, इसलिए इस केस में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है. ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पे ट्रांजिशन स्टेट इज दैट स्टेट वेयर नो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड नो बॉन्ड इज ब्रोकन कम्प्लीटली. मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो X माइनस का जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से टूटा भी नहीं है, और जो OH का बॉन्ड है वो पूरी तरीके से जुड़ा भी नहीं है. ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे ये पूरी तरीके से बॉन्ड न टूटी है न बॉन्ड बनी है. दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, X माइनस जो है वो लीव कर जाता है तुरंत, एंड वी विल बी गेटिंग प्रोडक्ट. दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H. ओके, एंड वी हैव OH. तो इसकी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, हमको किस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा बैक साइड ही अटैक होती है तो हमको यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है. द प्रोडक्ट इज इन्वर्जन. ओके, अगेन व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. ये जो SN2 रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होता है. इट इज अ सिंगल स्टेप, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये जो सिंगल स्टेप है यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है. ओके, एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of nucleophile as well as concentration of the alkyl halide. So ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, ये दैट यू हैव स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स. ऑलराइट, सो अगर हम मान लो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की डबल कर दे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इन दिस केस क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है. पहला कि SN2 रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है. ओके, हियर द न्यूक्लियोफाइल जो है वो डोनेट करता है अपना लोन पेयर. कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे, तो ये क्या किया, इसने कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जाके लोन पेयर को डोनेट किया, और जैसे ये लीविंग ग्रुप निकल गया वैसे ही इसने क्या किया, वापस से बॉन्डिंग बना ली है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको, वो रिएक्शन का ही पार्ट है, हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते. तो जितना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट होगा हमारा, उतना अच्छा हमारा रिएक्शन होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2. तो SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में डिफरेंस ये है, 2 स्टेप रिएक्शन. ओके, SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. SN1 हमारा क्या है, SN1 reaction हमारा takes place by the formation of a carbocation, whereas SN2 there is no formation of the carbocation. SN1 reaction it's a first order reaction, SN2 is a second order reaction. SN1 reaction भी एक्सोथर्मिक है, ओके, लो टेम्परेचर पे होती है. SN2 reaction भी लो टेम्परेचर पे यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है. I hope this was all about SN1 and SN2 reaction for this lecture. Hope you have understood. If you like my videos, please do like and subscribe it, and wait for the next video very soon. Thank you so much.